اے محبوب، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میری طرف تھوڑا توجہ دیجیے تو بولو۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، میں نے آپ کو ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہر انسان جانتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کہاں پہ ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ تشریف لائے، ہر انسان جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا لیے، مکہ شریف میں تشریف لائے۔ شہر مکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عبد المطلب کے گھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت کے زمانے میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کے زمانے میں مکہ میں، شہر مکہ میں ریتیلی زمین ہوا کرتی تھی، اور آج بھی ہے۔ پہاڑی علاقے ہوا کرتے تھے، اور اتنی تپیش کی گرمی، اتنی تپیش کی دھوپ نکلتی تھی۔ اس وقت مکہ شہر میں جو ہے کہ ہرے گھاس کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ جس گھر میں، شہر مکہ کے جس گھر میں بچے پیدا لیتے تو شہر مکہ کے دور دراز کے رہنے والے گاؤں کے لوگ، گاؤں کے خواتین شہر مکہ میں آتی، اور آنے کے بعد جتنے بھی مکہ شریف میں، شہر مکہ میں بچے جنم لیتے ان کو اپنے گھر لے جاتے تھے، پرورش کرنے کے لیے، کفالت کرنے کے لیے لے جاتے تھے۔ اس لیے لے جاتے تھے کہ جو گاؤں سے تعلق رکھتے تھے ان کے گاؤں میں ہرے گھاس نکلا کرتے تھے، ان کے گاؤں میں ہرے گھاس نکلا کرتے تھے۔ اور خواتین جو ہے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو لانے کے بعد ٹھیک شہر مکہ میں آئے، وہی دیہات کے رہنے والے کچھ خواتین شہر مکہ میں آئی۔ آنے کے بعد جو ہے کہ کچھ رئیس زادوں کے بچوں کو اٹھانا چاہا، جو دائیاں آتی تھی ان کو اٹھا کر رئیس زادے کے جو بچے تھے ان کو اٹھا کر لے گئے۔ لے جانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ جب سارے خواتین اپنے گاؤں سے آ کر مکہ کے ایک ایک بچے جو مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ان کو اٹھا کر لے گئے، تو آخر کار حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گاؤں سے آتی ہے۔ آنے کے بعد قسم خدا کی او خواتین سے پوچھتی ہے جو پہلے شہر مکہ میں آ گئی تھی، اور آ کر جو ہے کہ بچوں کو اٹھا کر اپنے گاؤں کے طرف بڑھ رہی تھی۔ راستے میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت حلیمہ پوچھتی ہے ان تمام خواتین سے، ہے میری بہنوں یہ تو بتاؤ کہ تم مجھ سے پہلے کا مکہ شریف میں چلی گئی ہو، تم سارے بچوں کو اٹھا کر لے آئے ہو یا نہیں؟ انہی خواتین میں سے ایک خاتون اٹھی اور کہنے لگی بہن حلیمہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک شہر مکہ میں بچہ بچ چکا ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، جو یتیم ہے۔ قسم خدا کی حضرت حلیمہ جب مکہ شہر پہنچتی ہے تو پہنچنے کے بعد اپنی لاغر اور کمزور اٹھنی کو مکہ کے گلیوں میں باندھتی ہے۔ باندھنے کے بعد پتہ لگاتی ہے کہ وہ کون سا یتیم بچہ ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ پورے مکہ کے گلیوں میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوم گھوم کر پوچھ رہی ہے۔ پوچھنے کے بعد، پتہ لگانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک حضرت عبد المطلب کے گھر ایک بچہ پیدا لیا ہے، آمنہ کے گھر ایک بچہ پیدا لیا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ
रिवायतों में आता है कि जैसे ही हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे मुस्तफा यानी हजरत आमना के घर के दरवाजे को उस पार जाती है, मेरे मुस्तफा कसम खुदा की एक चारपाई पे लेटे हुए हैं, बचपने के आलम है, मेरे मुस्तफा चारपाई पे लेटे हुए हैं। हजरत हलीमा जब आमना के घर में अपने कदमे नाज को रखती है तो रखने के बाद मेरे मुस्तफा के कसम खुदा की हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ जो है कि मेरे आका कर लेते हैं। करने के बाद मेरे आका के चेहरे मुबारक पे तबस्सुम होता है, मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने के बाद हजरत हलीमा घर के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है कि एक खूबसूरत सा बच्चा है, एक प्यारा सा बच्चा है। हजरत हलीमा दिल में सोचती है कसम खुदा की मैं बहुत सारे बच्चों की हिफाजत की, मैं बहुत सारे बच्चों की परवरिश की, लेकिन आज तक इतना अच्छा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा, आज तक मैंने इतना खूबसूरत बच्चा कभी नहीं देखा, आज तक मैंने इतना चमकता हुआ चेहरे वाला बच्चा को नहीं देखा है। कसम खुदा की हजरत आमना जैसे मेरे मुस्तफा के चारपाई के करीब बढ़ती है, हजरत हलीमा के दिल की दुनिया बदलती जाती है, हजरत हलीमा के दिल की दुनिया बदलती जाती है। मेरे मुस्तफा का रुखे ज़ेबा हजरत हलीमा की तरफ है। कसम खुदा की जब हजरत हलीमा, रिवायतों में आता है कि जब हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब मेरे मुस्तफा को गोद में उठाती है, मेरे मुस्तफा को गोद में उठाती है तो मेरा मुस्तफा इतना खूबसूरत दिखते हैं, इतना खूबसूरत देखते हैं। कभी हजरत हलीमा सूरज को देखती, कभी मेरे मुस्तफा के चेहरे को देखती, कभी हलीमा सूरज की रोशनी को देखती, कभी मेरे मुस्तफा के चेहरे को देखती। कसम खुदा की हजरत हलीमा को ज़माने के लोग यही कहेंगे कि हलीमा तूने मुस्तफा को उठाकर अपनी तकदीर को बना लिया है, लेकिन मलाइका अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते यही कहेंगे कि तूने मुस्तफा को उठाकर अपनी तकदीर को बना लिया है। हजरत हलीमा मुस्तफा को उठाकर अपनी बिगड़ती हुई तकदीर। मेरे दोस्तों, जब हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर से बाहर निकलती है तो मक्का की तपिश, ओ मक्का की गर्मी, मक्का की गर्मी इतनी थी कि मक्का की गर्मियों में आइए आप लोग बैठिए, क्या आइए दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मालिक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे मुस्तफा को गोद में उठाकर जब हजरत आमना के घर से बाहर आई तो मक्का की वो धूप, मक्का की वो धूप, वो गर्मी, हजरत हलीमा दिल में सोचने लगी कि मैं इस बच्चे को अपने आंचल से उड़ा लेता हूँ, मैं इस बच्चे को अपने आंचल से उड़ाती हूँ। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसे ही मेरे मुस्तफा के चेहरे मुकद्दसा पे अपनी आंचल को रखती है, कसम खुदा की उससे पहले बादल एक साया बन जाता है। जिस जगह मेरे मुस्तफा गोद में है, जहाँ जहाँ हजरत हलीमा मेरे मुस्तफा को लेकर जा रही है, आगे कदम को बढ़ा रही है, वहाँ वहाँ बादल साया करता हुआ चला जा रहा है, बादल साया कर रहा है। हजरत हलीमा देखकर घबरा गई, हजरत हलीमा देखकर सोचने लगी कि ये कौन सा माजरा है, मैंने तो बहुत सारे बच्चों की हिफाजत की है, मैंने बहुत सारे बच्चों की परवरिश किया है, लेकिन मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि बादल जो है मेरे इस बच्चे के चेहरे पर साया कर दे रहा है, क्या बात है। हजरत हलीमा ताज्जुब करने लगी। कुछ ही देर चलने के बाद, मक्का के गलियों में चलने के बाद हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वही कमजोर उठनी पर सवार होती है जो जिसके बारे में रिवायतों में आता है कि जब हजरत हलीमा अपने घर से चली थी तो
कमजोर उठनी इतनी कमजोर हो गई थी कि हजरत हलीमा उसे ढेर ढोल कर मक्का शरीफ लाई थी। रास्ते में कितने बार वो उठनी बैठ चुकी भी थी, लेकिन जब कसम खुदा की रिवायतों में आता है कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हजरत हलीमा वही कमजोर उठनी पर सवार होती है, वही लागत उठनी पे सवार होती है, तो कसम खुदा की वो उठनी इतनी तेज रफ्तारी के साथ दौड़ती है, इतनी तेज रफ्तारी के साथ दौड़ती है जो पिछले खवातीन जो पहले मक्का के बच्चों को उठाकर अपने गांव की तरफ लेके जा रहे थे, उन तमाम खवातीन से जो है कि हजरत हलीमा की उठनी सबसे आगे दौड़ती हुई नजर आने लगी, सबसे आगे जो है कि बढ़ गई। उन्हीं खवातीन में से एक खातून उठी और कहने लगी, बहन हलीमा क्या बात है, मक्का के लोगों ने तुझे ज्यादा पैसा दे दिया है क्या? मक्का के लोगों ने तुझे ज्यादा पैसा दे दिया है ताकि तुम जो है कि नई उठनी खरीद लिए हो, इसलिए तो तेजी रफ्तारी के साथ मेरी उठनी को जो है कि पीछे छोड़कर तुम्हारी उठनी जो है कि आगे बढ़ रही है। हजरत हलीमा जो है कि जवाब देती है, मेरी बहनों, न मैं बदला हूँ न मेरी उठनी बदली है, बल्कि बैठने वाला सवार बदल गया है, बैठने वाला सवार बदल गया है। कसम खुदा की हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अपने गांव पहुंचती है तो कई सालों से जो है कि हजरत हलीमा के गांव में जो है कि गांव के जितने भी गाय थे उनके दूध सूखे हुए थे। कई सालों से हजरत हलीमा के गांव के गाय के दूध सूखे हुए थे, उनके थन में कोई दूध नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरे मुस्तफा के कदम नाज हजरत हलीमा के गांव में पहुंचता है, जैसे ही मेरे मुस्तफा के कदम नाज हलीमा के गांव में पड़ता है, कसम खुदा की रिवायतों में आता है कि हलीमा के तमाम बस्ती के गायों के थन में दूध लबालब भरता हुआ नजर आता है, लबालब भरता हुआ नजर आता है। हजरत हलीमा जो है कि दूसरा मौजज़ा देखकर ताज्जुब करने लगी, दूसरा मौजज़ा देखकर ताज्जुब करने लगी कि क्या बात है, कौन सा बच्चा है? मेरे मुस्तफा बचपन के आलम में है। रात की तारीकी हुई, मेरे मुस्तफा को हजरत हलीमा ने 5 मिनट और बर्दाश्त कर लिया। रात की तारीकी हुई, चांदनी रात है, मेरे मुस्तफा को हजरत हलीमा जो है कि अपने घर के सेहन में आंगन में एक चरपाई पे लेटा देती। बोलिए ना सुभान अल्लाह, अरे कभी कभी बोलिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी आंगन में मेरे मुस्तफा को एक चरपाई पे लेटा देते हैं। चांदनी रात की हजरत हलीमा जब अपने घर के अंदर जाते हैं तो कुछ देर के बाद निकलते हैं अपने घर से बाहर, तो क्या देखते हैं कि मेरे मुस्तफा चांद से खेल रहे हैं। क्या मेरे मुस्तफा चांद से खेल रहे हैं? कभी मेरे मुस्तफा के दस्ते मुबारक का ये उंगली, शहादत वाली उंगली, कभी मेरे मुस्तफा चांदनी रात में जो है कि अपनी उंगली को आगे कर रहे हैं तो चांद आगे बढ़ रहा है, पीछे कर रहे हैं तो चांद जो है कि पीछे आ रहा है, दाएं कर रहे हैं तो दाएं चला जा रहा है, बाएं कर रहे हैं तो बाएं चला जा रहा है। हजरत हलीमा एक कोने में बैठकर सारा माजरा को देख रही है, सारे वाकयात को देख रही है। इतने देखने के बाद हजरत हलीमा अपने घर के अंदर जाती है, जाने के बाद कहती है, ऐ मेरे शौहरे हयात घर से बाहर निकलिए। हजरत हलीमा के शौहर घर से बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद पूछते हैं, मेरी बीवी आप बताइए कि क्या बात है, आप इतनी तेज आवाज के साथ मुझे पुकार रही थी। हजरत हलीमा कहते हैं, क्या आपको नहीं दिखता है कि वो बच्चा धरे के अपने हाथ को आगे कर रहा है? तो